Assalamu alaikum friends, welcome back to the channel Sheikh Inshad Learning Skills. In the previous video, I have told you the most important and most expected questions in your annual regular examination class 12th 2023. So in this video, we will going to discuss the Coulomb's law in vector form, how we will express the Coulomb's law in vector form, and will define the Gauss law, or you can say Gauss theorem, depends upon you. So let's start the video without wasting the time. So students, today I will explain you guys Coulomb's law. So before explaining the Coulomb's law or before expressing the Coulomb's law in vector form, we have to first define the Coulomb's law. What is the statement of Coulomb's law? It is key for you and you have to remember this, and you have to write the statement as well in your examination. And that will include 2 marks also. 2 marks for statement and 2 marks for expression, and there will be some relative question, either a unit vector or 1 column you have to define. Okay, first we will see the statement, Coulomb's law. Coulomb's law states that the force of attraction Coulomb's law states that the force of attraction or force of repulsion. Students, you should know that there are 2 types of forces. One is force of attraction and the another one is force of repulsion. Coulomb's law include both these forces, okay? Either force of attraction or either force of repulsion. Okay, we will first write the statement. After that, I will discuss this law to you guys. Force of attraction or force of repulsion between the 2 point charge bodies is directly proportional to the product of their charges. Okay, to the product of their charges, and is inversely proportional to the square of distance between them. Okay. Students, this is the statement of Coulomb's law This is the statement of Coulomb's law. Coulomb's law states that the force of attraction or force of repulsion. So easy. You have to remember force of attraction or force of repulsion between the 2 point charges. Here the condition is the charges must be point charges. Okay. This is the main condition in Coulomb's law. The charges must be point charges. Force of attraction or force of repulsion between the 2 point charge bodies is directly proportional to the product of their charges and is inversely proportional to the square of distance between them. Due to the smaller size of my whiteboard, I didn't write the whole law. Sorry for that. So now we will discuss the Coulomb's law. I hope you have written this. We will discuss the Coulomb's law in mathematical form. What is the formula of Coulomb's law? So let's write. Students, let's take an example. If there is one charge, namely Q1, and there is another charge, namely Q2, and the distance between them VR. Okay. Now, according to Coulomb's law, the force of attraction or the force of repulsion between these 2 charges will be mathematically calculated as F is directly proportional to, as I have already told you in the statement, that the force of attraction or force of repulsion will be directly proportional to what? Product of their charges. Here the charges are Q1 and Q2, and the product will become Q1 into Q2, and is inversely proportional to what, students? The square of distance between them. Here the distance between the 2 point charges is R, so the square will become R square. So easy, students, not too difficult. You just remember the statement, and after that you can apply by yourself. It is so easy, not too difficult.
Here I have told you in the statement that the force of attraction or force of repulsion will be directly proportional to the product of their charges. Here we take an example. Q1 and Q2 are the 2-point charges and R is the distance between them. So according to Coulomb's law, now the equation will become this force will be directly proportional to the product of their charges Q1 Q2 and is inversely proportional to the square of distance between them. Now to write the equation we need to write the equal symbol. Okay, so for this we will write F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Here K is constant of proportionality and the equation becomes successful, and this is known as Coulomb's law, or you can see Coulomb's equation. So now we have to derive the Coulomb's law in vector form. Now it will become very easy for we people because we have already derived the law. The law states that the force of attraction or force of repulsion between 2-point charges is K Q1 Q2 divided by R square. Now we will derive the Coulomb's law in vector form. So derivation is also important. You have 3 marks I think for derivation. So तो दोस्तों चलिए अब कॉलम्स लॉ एक्सप्रेस करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो फॉर दिस हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने कॉलम्स लॉ के स्टेटमेंट में लिया था। तो हमने कॉलम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या लिया था, लेट्स एज्यूम यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं Q1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रखते हैं, और जो इनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रखेंगे वो मॉड आर रखेंगे। यहाँ पे जो मॉड है जस्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मॉड आर है इसके 2 पॉसिबल वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। एक होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी ना, और ये वाला जो वेक्टर होगा ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो हियर फाइनल इज Q2 एंड इनिशियल इज Q1, बट वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। सो वी विल राइट R2 minus R1. R2 is final and R1 is initial. So ये वाला वेक्टर हमारा आ गया। इन द सिमिलर वे ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। दोस्तों यहाँ पे फाइनल Q1 है और यहाँ पे इनिशियल Q2 है, तो ये किसके बराबर आएगा, Q1 के बदले क्या लिखेंगे R1 और Q2 के बदले क्या लिखेंगे माइनस Q2 के बदले क्या लिखेंगे R2। तो ये वाला भी वेक्टर हमारे पास आ गया। अब एक बात गौर से सुनो दोस्तों, देखो यहाँ पे जो 2 पॉइंट चार्जेस है तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करें या वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करेंगे। जो इस पे फोर्स होगा ना Q1 पे, Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, ठीक है। F12 से हम फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करेगा Q1 को और 2 रिप्रेजेंट करेगा Q2। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑन Q1, ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है। इन द सिमिलर वे यहां से भी एक फोर्स होगा, लेकिन ये वाला फोर्स क्या होगा, F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो होप आपको ये समझ आया होगा, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अब हम एक्सप्रेशन के पार्ट पे जाते हैं या डेरिवेशन के पार्ट पे कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ठीक है, तो होप आप लोगों ने ये राइट किया होगा, लिखा होगा। तो दोस्तों अब हम फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके हम फोर्स निकाल देंगे। F12 जो फोर्स होगा ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो हम कूलम्ब्स लॉ निकाल के कर देंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे R के बजाय हमने मॉड R लिया है तो मॉड R का स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये जो लॉ आ गया ना कूलम्ब्स लॉ, ये इन टर्म्स ऑफ स्केलर आ गया, लेकिन हमको किस में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर जान लो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। तो यानी कि हमको यहाँ डायरेक्शन एक्सप्रेस करना है, कौन से वाले फोर्स का, F12 का, यानी कि हमें इस साइड का डायरेक्शन लेना है, इस साइड के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। देखिए हम डायरेक्टली इसको लेते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन भी तो सेम है ना फ्रेंड्स, इस वाले और इस वाले का डायरेक्शन सेम है, तो क्यों ना हम यही वाला ले, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर ले, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले, तो क्या आएगा R1 माइनस R2, ऊपर कैप लगा देंगे, कैप सिंबल होती है यूनिट वेक्टर की, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, जो यूनिट वेक्टर होता है ना r1 माइनस r2 कैप, ये बराबर होता है इसका वेक्टर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेरी वेक्टर r1 माइनस r2 का मॉड, ठीक है। बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडेबल जो मैंने आपको ये बताया है, आपके लिए बहुत इजी है और अंडरस्टैंडेबल भी है, तो आप आराम से इसको रिमेम्बर कर सकते हो। या आप मैं सिंपल वे में लिख दूंगा इसकी फार्मूला, जो ए होता है ना ए कैप दोस्तों, तो उसकी फार्मूला होती है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए। यहाँ पे ए के बजाय मेरे पास क्या था r1 माइनस r2, तो मैंने लिख दिया r1 माइनस r2 कैप किसके बराबर होगा, r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ r1 माइनस r2। होप आपको इस एग्जांपल को देख के आप समझ आया होगा कि क्या फॉर्मूला है। अब यही हम यहाँ पे अप्लाई करके फोर्स निकाल लेते हैं, तो ठीक है, ये क्या बनेगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का स्क्वायर। इसके बदले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ दैट वन r1 माइनस r2, ठीक है। देखो यहाँ पे अब एक बात आती है, ये जो r1 माइनस r2 मॉड है, ठीक है, r1 माइनस r2 मॉड ये किसके बराबर है बता दो मुझको, मॉड r के बराबर है ना। देखो यहाँ पे r1 माइनस r2 जो वेक्टर मैंने लिया है, ठीक है, r1 माइनस r2 मॉड में मॉड r के बराबर नहीं लिख सकता हूँ ना, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दो। हाँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो मॉड r, ये जो r1 माइनस r2 ये किसका वेक्टर है, ये तो मॉड r का वेक्टर है ना, इसीलिए r1 माइनस r2 के बजाय में मॉड्यूलस ऑफ r1 माइनस r2 के बजाय में मॉड r लिख सकता हूँ ना, क्योंकि r1 माइनस r2 खुद किसका वेक्टर है, वो तो r का वेक्टर है। अब जब मॉड्यूलस आ गया तो डेट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ r1 माइनस r2 किसके बराबर होगा, मॉड्यूलस ऑफ r के बराबर, तो इजी है ना, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ r स्क्वायर। इसके बदले में क्या लिखूंगा, मॉड r, ठीक है, मॉड r, ठीक है, और ऊपर क्या है r1 माइनस r2 वेक्टर, r1 माइनस r2 वेक्टर। ये अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आएगा k Q1 Q2, वीडियो बहुत लंबा होगा उसके लिए सॉरी, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखो मॉड्यूलस ऑफ r स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ r, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 8, दैट मींस 2 और 1 3 हो गया, दैट मींस ये बन जाएगा मॉड r का क्यूब, और ऊपर क्या है r1 माइनस r2 का वेक्टर, r1 माइनस r2 का वेक्टर। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन किस वाले फोर्स के लिए, F12 के लिए। तो दोस्तों आप तो आपके लिए इजी होगा F21 के लिए, तो जल्दी से मुझे बता दो F21 के लिए क्या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, F21 के लिए मुझे बता दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे R2 माइनस R1 आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा ना, वही चार्जेस तो वही है ना, बाकी सेम रहेगा, और K भी सेम ही रहेगा, Q1 Q2 भी सेम रहेगा। दैट मीन्स हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि F21 किसके बराबर होगा, नीचे F21 वेक्टर होगा बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड R क्यूब, यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये वाले दो, हाँ ये वाले दो, ये एक और ये दो, यही आपको एग्जाम में एक्सप्रेस करने हैं या डिराइव करने हैं। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और मेरी चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भाई लोग आप सभी मुझको सपोर्ट करोगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।